My students, in this session we are going to take up questions related to time, speed, distance that have appeared in previous year महाराष्ट्र CET examination. चलिए start करते हैं. So time into speed is equal to distance, and there are three major cases. One is that when time is same, distance is proportional to speed. When speed is same, distance is proportional to time, and when distance is same, in both cases, in two cases, speed into time is constant या same. So speed and time are inversely proportional. So ratio of speed S1 and S2 will be equal to T2 upon T1. Now let us go through the questions. Question number 1 from Maharashtra CET 2023. A man decided to cover a distance of 6 km in 84 minutes. He decided to cover 2/3 of the distance at 4 km per hour and the remaining at some different speed. Find the speed after the 2/3 distance has been covered. Total 6 km has to be covered in 84 minutes and 2/3 of the distance of 6 km, 2/3 कितना होगा? That will be 4 km, has been covered at a speed of 4 km per hour. So time taken will be 60 minutes. Remaining time will be 24 minutes, or remaining distance is 2 km. So 2 km has to be covered in 24 minutes. Isn't it so? Which is equal to 2 by 5 hour. The required speed will be 2 upon 2 by 5. Distance upon time. So speed will be equal to 5 km per hour. Option A. Is it clear? ठीक है. Next question. Question number 2. A skating champion moves along the circumference of a circle of radius 28 meters in 44 seconds. How many seconds will it take her to move along the perimeter of a hexagon of side 48 meters? So, skating champion moves along the circumference of a circle of radius 28 meters in 44 seconds. So, 28 meters के circle circumference क्या होगा? That will be 2 pi r, which is 2 into 22 by 7 into radius is 28 meters. This is the perimeter. So 2 into 22 into 4, 44 into 4 basically. और 44 seconds में इतना distance travel कर रहा है. तो speed of the skating champion will be equal to 44 into 4, that is the total distance, divide by 44 seconds. तो यानी कि 4 meter per second is the speed. 4 meter per second is the speed. Now we need to find out time taken when she moves along the perimeter of a hexagon of side 48 meters. Hexagon का perimeter क्या हो जाएगा? 6 sides हैं. तो hexagon का perimeter and total distance traveled will be equal to 48 into 6. That is the distance. So time taken will be equal to 48 into 6 divided by 4, which is 12 into 6, 72 seconds. Option D. Okay. अच्छा, जब भी perimeter हमें निकालना हो किसी भी सर्कल का, तो if 7 centimeter is the radius of a circle, perimeter will be equal to 44 centimeter. For 7 centimeter radius, the perimeter is 44 centimeter. और 7 का कोई मल्टीपल है, लेट अस से 7x है, तो perimeter will be 44x. Because perimeter is proportional to radius. ठीक है, तो 7x है तो 44x. अब यहाँ पे क्या था? 28 meters था, 7 into 4 times था, तो our perimeter will be 44 into 4. तो 7 centimeters के लिए perimeter हमें याद रखना है, that is 44 centimeter. Is that clear? ठीक है, प्रैक्टिस में बहुत काम आएगा, थोड़ा समय तो बचा ही लेता है. और सिमिलरली जैसे हमने पेरीमीटर के लिए बात किया, एरिया के लिए भी कह सकते हैं कि फॉर इफ द रेडियस इज 7 सेंटीमीटर तो एरिया विल बी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. एंड इफ द रेडियस इज 7x, देन एरिया क्योंकि पाई आर स्क्वायर होता है, सो एरिया विल बी 154x स्क्वायर. तो दीज टू थिंग्स आर वेरी हैंडी एंड सेव्स द टाइम. कई बार ऑप्शंस भी डायरेक्टली दिख जाते हैं. फिर क्लियर है? ठीक है. अगला क्वेश्चन. On a journey across Bombay, a tourist bus averages 10 km per hour for the 20% of the distance, 30 km per hour for 60% of it, and 20 km per hour for the remainder. So we need to find out the average speed of the whole journey. Average speed of the whole journey. तो वैल्यूज इतनी ईजी है हमारी. 20% ऑफ द डिस्टेंस, लेट अस अज्यूम कि टोटल डिस्टेंस 100 किलोमीटर है, तो 20 किलोमीटर ही हैज ट्रेवल्ड बाई 10 km per hour. 60%, लेट अस से 60 किलोमीटर,
क्योंकि 100% में मान लिया टोटल डिस्टेंस 100 किलोमीटर है. ओके, तो 60 किलोमीटर इज ट्रेवल्ड एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड रिमेनिंग विल बी 20 किलोमीटर दैट हैज ट्रेवल्ड एट 20 किलोमीटर पर आवर. तो टाइम टेकन इन फर्स्ट केस विल बी 2 hours, in second case will be 2 hours, and in third case will be equal to 1 hour. So average speed will be equal to total distance upon total time, TD by TT. Total distance is 100 kilometers or total time is 2 plus 2 plus 1, 5 hours. So 20 kilometer per hour will be our average speed. Option C. Also in any case, जो भी हमने speeds ली हैं, पहली speed कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर, सेकेंड स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर और थर्ड स्पीड इज 20. तो 10, 20 और 30, मिनिमम इज 10, मैक्सिमम इज 30. तो आवर एवरेज वैल्यू विल ऑलवेज बी बिटवीन 10 एंड 30. एवरेज वैल्यू हमेशा 10 और 30 के बीच में होगी, ना तो 10 हो सकती है, उससे कम तो बिल्कुल नहीं हो सकती, ठीक है, और ना ही 30 हो सकती है. तो डेफिनेटली या तो ऑप्शन सी आंसर होता है या फिर ऑप्शन ई आंसर होता है. इज दैट क्लियर? ठीक है, इज दैट क्लियर? और अगर हमारी टिपिकल वैल्यूज होती, इतनी ईजी वैल्यूज नहीं होती परसेंटेज पे या सीधे सीधे डिवाइड हो रहा होता है वैल्यूज, तो फिर हम वहां पे क्या करते हैं 10, 20 और 30 जो हमारी स्पीड्स हैं इनका एलसीएम को अपना सबसे छोटा डिस्टेंस मानते हैं. ठीक है, इनके एलसीएम को अपनी सबसे छोटी डिस्टेंस मानते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. आंसर हमारा तब भी सेम ही आता है. इज दैट क्लियर? ठीक है. फॉर एग्जाम्पल कि 10, 20 और 30 का एलसीएम विल बी 60 किलोमीटर्स. तो 20% डिस्टेंस को मान लेते हैं 60 किलोमीटर और फिर 60% हो जाता है 180 किलोमीटर और बचा हुआ हो जाता है 60 किलोमीटर और फिर यही सेम प्रोसेस रिपीट करते, आंसर तो सेम ही आना था. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाइल गोइंग टू ऑफिस रमेश ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड ऑन हिज वे बैक ही ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 45. व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी? व्हाइल गोइंग टू ऑफिस, सेम डिस्टेंस है दोनों ही केसेस में, डिस्टेंस तो सेम है. अगर डिस्टेंस सेम है यानी कि स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे. स्पीड्स गिवन है हमें, जाते समय स्पीड वाज 30, लौटते समय स्पीड वाज 45. तो स्पीड का रेशियो कितना है 2:3 का. एक सेकंड, यहाँ पे निकालना क्या है, एवरेज स्पीड निकालनी है. आई वाज गोइंग इन सम अदर फ्लो. एवरेज स्पीड निकालनी है. ठीक है, डिस्टेंस दोनों केसेस में सेम है. ओके, तो एवरेज स्पीड इन दैट केस क्या होगा, कोई भी हम या तो डिस्टेंस एज्यूम कर लें, यहाँ पे स्पीड्स हमारी है 30 एंड 45, लेट अस से डिस्टेंस हम एज्यूम कर लेते हैं दोनों का एलसीएम दैट इज 90 किलोमीटर्स. 90 किलोमीटर्स. तो अगर डिस्टेंस हमारा 90 किलोमीटर्स है तो टाइम कितना आ जाएगा, 30 में टाइम लगेगा 3 आवर्स का और 45 में टाइम लगेगा 2 आवर्स का. टोटल टाइम आ गया 5 आवर्स. तो एवरेज स्पीड विल बी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम और टोटल डिस्टेंस है हमारे 90 प्लस 90 यानी 180 डिवाइड बाई टोटल टाइम इज 5 आवर्स. 180 बाई 5, 36 किलोमीटर पर आवर. ऑप्शन बी. और इन जनरल जब भी दो स्पीड हमें गिवन है, स्पीड है S1 एंड S2 और सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू हार्मोनिक मीन ऑफ दीज टू वैल्यूज यानी कि 2S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2. तो डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Arun, Barun and Kiranmala start from the same place and travel in the same direction at the speeds of 30, 40 and 60 km per hour respectively. Barun starts 2 hours after Arun, and if Barun and Kiranmala overtake Arun at the same instant, how many hours after Arun did Kiranmala start? So basically they are starting from the same place. Arun ho, Barun ho और Kiranmala ho, they are starting from the same place से start कर रहे हैं and traveling in the same direction, and ultimately after some time, तीनों का starting time तो different है, बट एक टाइम पे आके तीनों साथ में फिर से मिल रहे हैं जब अरुण और व्हेन वरुण एंड किरणमाला आर ओवरटेकिंग अरुण, दैट इंप्लाइज कि तीनों के तीनों साथ में मिलेंगे एक पॉइंट के बाद में. ठीक है, और हमें स्पीड्स गिवन है, उनकी स्पीड्स गिवन है अरुण की, वरुण की और किरणमाला की. तो अगर सेम डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहे हैं, डिस्टेंस सेम है तीनों के केस में, स्पीड गिवन है, तो टाइम और स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा. इजंट इट सो? स्पीड्स हैं यहाँ पे 30, 40 और 60. ओके, स्पीड्स है 30, 40 एंड 60. एंड और क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है हमें, वरुण स्टार्ट्स 2 आवर्स आफ्टर अरुण, 2 आवर्स आल्टर नहीं, 2 आवर्स आफ्टर अरुण. ठीक है, तो अगर स्पीड्स है 30, 40, 60 या रेशियो है स्पीड का 3:4:6, तो इफ टोटल डिस्टेंस वॉज इक्वल टू 12, रेशियो में टाइम निकाल लेते हैं. ठीक है, तो टाइम कितना आ जाएगा, टाइम फॉर अरुण विल बी 4 यूनिट्स, फॉर वरुण विल बी 3 यूनिट्स, फॉर किरणमाला विल बी 2 यूनिट्स. तो टाइम का रेशियो आ जाएगा 4:3:2. एंड व्हाट वी नो कि वरुण स्टार्ट्स 2 आवर्स आफ्टर अरुण, यानी कि वरुण और अरुण के बीच का जो टाइम गैप है दैट इज 2 आवर्स, और यूनिट्स में है 1 यूनिट का डिफरेंस है उनके बीच में, विच इज इक्वल टू 2 आवर्स. यानी कि अरुण मस्ट हैव टेकन
8 hours in completing that distance, while Barun would have taken 6 hours. And Kiranmala would have taken 2 into 4 hours to cover the same distance. Now question is asking if Barun and Kiranmala overtake Arun at the same instant. तो यानी कि जितने टाइम में Barun ने overtake किया है, अल्टीमेटली उसी सेम टाइम पे, उसी सेम इंटरवल ऑफ टाइम पे किरणमाला इज ऑल्सो ओवरटेकिंग, जबकि किरणमाला को टाइम लगता है 4 आवर्स का, और वरुण ने 2 घंटे के बाद में स्टार्ट किया है, ठीक है, और वरुण ने 6 आवर्स के बाद में वरुण उस पॉइंट पे पहुंचा होगा, ठीक है, तो किरणमाला ने उसके भी 2 घंटे के बाद में स्टार्ट किया होगा, क्योंकि किरणमाला को सिर्फ 4 घंटे ही लगने वाले हैं, 4 आवर्स ही लगने वाले हैं, इजंट इट सो? क्वेश्चन इज आस्किंग हाउ मेनी आवर्स आफ्टर अरुण डिड किरणमाला स्टार्ट। अरुण को लग रहे हैं 8 आवर्स और किरणमाला को लग रहे हैं 4 आवर्स, यानी कि अरुण से 4 आवर्स के बाद में किरणमाला ने स्टार्ट किया होगा, तभी ये पॉसिबल है कि वो सेम टाइम पे ओवरटेक करे। तो आंसर विल बी 4 आवर्स, ऑप्शन सी। इज दैट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। An aeroplane flies with an average speed of 756 km per hour. A helicopter takes 48 hours to cover twice the distance covered by the aeroplane in 9 hours. How much distance will the helicopter cover in 18 hours? So what do we know? That helicopter takes 48 hours to cover twice the distance covered by aeroplane in 9 hours, which implies कि helicopter covers the distance in 48 hours, जो distance एरोप्लेन कवर कर रहा है 18 आवर्स में, 9 into 18 आवर्स में, इजंट इट सो? है कि नहीं? ठीक है, 18 आवर्स में जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, या तो ऐसे समझ लो कि हेलीकॉप्टर जो डिस्टेंस 48 आवर में कवर कर रहा है वो एरोप्लेन 9 into 18 आवर्स में कवर कर रहा है, या फिर ऐसे समझ लो कि एरोप्लेन जो 9 आवर्स में कवर कर रहा है उसकी डबल अगर 48 आवर्स में कवर कर रहा है, यानी कि सेम डिस्टेंस कवर करेगा 24 आवर्स में, सेम डिस्टेंस कवर करेगा 24 आवर्स में। क्लियर है? तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा 9 आवर्स में एरोप्लेन? स्पीड गिवन है एरोप्लेन का, तो 9 into 756 दैट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड, और ये डिस्टेंस कवर कर रहा है हेलीकॉप्टर 24 आवर्स में, बट हमें क्वेश्चन में पूछा है कितने में? 18 आवर्स में। 18 आवर्स में पूछा है, यानी कि 3/4 टाइम में पूछा है, तो अवर आंसर विल बी 9 into 756, ये डिस्टेंस 24 में कवर कर रहा है, इंटू 18/24 या 3/4, ठीक है, इंटू 18/24 या फिर 3/4 स्ट्रेट अवे, ठीक है। तो 4 से यहाँ कितनी बार जाएगा? 189, so this becomes 189 into 27, क्लियर है? ठीक है, 189 into 27, so this is 190 minus 1 and 27 is 30 minus 3. अच्छा, एक चीज तो वैसे ही क्लियर है, 9 into 7 यानी कि यूनिट डिजिट तो 3 आएगा, तो ए बी सी तो आंसर नहीं हो सकते, दैट इज फॉर श्योर, बट क्योंकि ई भी ऑप्शन दिया हुआ है इसलिए कैलकुलेट तो करना पड़ेगा, ठीक है, कैलकुलेट तो करना पड़ेगा। 190 into 30 is 5700 minus 570 minus 30 plus 3 यानी कि minus 27, so this is 5103, ऑप्शन डी। क्लियर है? ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, इसी चीज़ को ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे कि हमें पता है 189 into 27 हमें कैलकुलेट करना है, तो 190 into 27 कैलकुलेट कर लो, ठीक है, 19 के टेबल से, वो भी पॉसिबल है, और फिर उसमें 27 माइनस कर दोगे, ठीक है, तो 19 7 3 आ गया, 13 बचा, 92 38 और 13 5130, और फिर माइनस कर दोगे 27, तो भी आंसर आ जाएगा, वो ज़्यादा आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a car travels along a path A, B, C, D along the segments A, B, B, C and C, D. Points A, B, C, D are equidistant from each other. So this is the path A, B, C, D, and A, B, B, C and C, D are equal. What was the speed of the car while traveling in the segment C, D? That is what the question is. Data sufficient question है, ठीक है, क्वेश्चन को हमें सॉल्व नहीं करना है, बस ये देखना है कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, किस स्टेटमेंट के थ्रू वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस, और पहले हमेशा अप्रोच हमें क्या करना है कि एक स्टेटमेंट से सॉल्व होता है, दैट इज बेस्ट। अगर एक से सॉल्व नहीं होता तब फिर दोनों स्टेटमेंट को साथ में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इज 288 किलोमीटर्स एंड द स्पीड ऑफ द कार इन सेगमेंट बी सी इज 72 किलोमीटर पर आवर। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इज 288,
टोटल डिस्टेंस से हमें ए बी बी सी और सी डी क्योंकि इक्वल हैं तो सेगमेंट्स का लेंथ पता चल जाएगा, इजंट इट सो? सेगमेंट का लेंथ पता चल जाएगा क्योंकि सेगमेंट्स की लेंथ इक्वल है और स्पीड ऑफ द कार इन सेगमेंट बी सी इज गिवन 72, बट सेगमेंट बी सी में लेंथ से क्या होगा, हमें तो चाहिए क्या, सेगमेंट सी डी में स्पीड क्या होगी। तो सेगमेंट बी सी में अगर स्पीड दे भी दिया बट हमें टोटल टाइम नहीं पता है, हमें ए बी में स्पीड नहीं पता है, देयर आर मेनी मोर इन्फॉर्मेशन दैट वी नीड, तो स्टेटमेंट 1 इन इटसेल्फ इज नॉट सफिशिएंट, इससे हमें स्पीड नहीं पता चल पाएगी। क्लियर है, इससे स्पीड पता नहीं चल पाएगी। सेकंड स्टेटमेंट में चलते हैं। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है एवरेज स्पीड ऑफ द कार ड्यूरिंग द इंटायर जर्नी इज 72 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड पता चल गई। स्पीड ऑफ द कार टू कवर सेगमेंट्स ए बी बी सी एंड सी डी इज इन द रेशियो 15, 12 एंड 10, तो रेशियो पता चल गया। एवरेज स्पीड पता है, रेशियो पता है, यहां से डेफिनेटली वी कैन सॉल्व इट क्योंकि डिस्टेंसेस सेम है तीनों की तीनों, डिस्टेंसेस तीनों सेम है, तो डेफिनेटली सेकंड स्टेटमेंट सफिशिएंट इन इटसेल्फ। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है, ओके, सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है, ऐसे समझ लो कि लेट अस से स्पीड्स का रेशियो गिवन है हमें, तो 15x 12x और 10x हमें क्वेश्चन में सॉल्व नहीं करना है, तो इतना ही सफिशिएंट है, हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे सेकंड अलोन सफिशिएंट ऑप्शन बी। बट सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ 15x 12x और 10x ये हमारी स्पीड्स हैं। ओके, दीज आर द स्पीड्स और एवरेज स्पीड हमारी आ रही है 72। एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड क्या होगा, अगर दो स्पीड्स होती तो क्लियरली हमें पता था 2ab अपॉन a प्लस बी होता है। इन केस ऑफ थ्री स्पीड्स, अगर स्पीड्स ए बी सी हैं तो 3abc अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, दैट इज द एवरेज स्पीड। तो उस फॉर्मूले से वी कैन डायरेक्टली सॉल्व फॉर इट और यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी और फिर हमें 10x की वैल्यू भी मिल जाएगी, तो वी कैन डेफिनेटली सॉल्व इट। इज दैट क्लियर? ठीक है, क्या बात समझ में आती है? या फिर हम ऐसे सोच सकते थे कि जो इससे भी बेहतर तरीका है रेशियो वाले अप्रोच से, कि हमें रेशियो पता है 15, 12 और 10, तीनों का एलसीएम ले लें, एलसीएम ले लें और वो अपनी डिस्टेंस मान लें, तो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू 60 किलोमीटर्स, दिस इज इक्वल टू 60 किलोमीटर्स। तो टाइम कितना आ जाएगा, ये तो स्पीड का रेशियो है, टाइम आ जाएगा, टाइम का रेशियो आ जाएगा, टाइम की वैल्यू आ जाएगी 4 आवर्स फॉर द फर्स्ट स्ट्रेच, 5 फॉर द सेकंड एंड 6 फॉर द थर्ड। ओके, टोटल डिस्टेंस है 180। एक्चुअल में हमने 60 माना है बट 60 का कोई मल्टीपल होगा, इजंट इट सो? तो एज सच दिस डिस्टेंस विल बी 180 इंटू समथिंग 180 के मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस। ठीक है, और टाइम टेकन विल बी कितना, टाइम टेकन विल बी 4, 5, 6। ठीक है, 4 + 5 + 6, तो अगेन टाइम, क्योंकि ये जो स्पीड्स हैं ये भी तो रेशियो में ही है, ये भी तो रेशियो में ही है, इजंट इट सो? ठीक है, ये भी तो रेशियो में ही है 15, 12 और 10, तो ये टाइम का रेशियो आ गया 6 + 5 + 4 15। सम कांस्टेंट के हमने इफेक्टिवली मान लिया इस पूरी वैल्यू के 180/15, यानी कि दिस इज इक्वल टू 12 के। एवरेज स्पीड आ जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो दैट विल बी, ठीक है, सब में अलग अलग अननोन मानने के बजाय एक अननोन हमने मान लिया के, तो 12 के हमारी एवरेज स्पीड आ गई विच इज इक्वल टू 72। एंड इफ 12 के इज इक्वल टू 72 तो डेफिनेटली के इज इक्वल टू 6। ठीक है, के इज इक्वल टू 6, कोई दिक्कत? ठीक है, तो अवर स्पीड विल बी for the stretch segment CD will be equal to 10 into 6, 60 किलोमीटर पर आवर। इज इट क्लियर? ठीक है, ओके, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन। Ram and Shyam are standing at two ends of a room with a width of 30 meters. They start walking towards each other along the width of the room with a speed of 2 meters per second and 1 meter per second respectively. So we have to find the total distance traveled by Ram when he meets Shyam for the third time. राम और श्याम दो एंड्स पे खड़े हैं ऑफ अ रूम, रूम की विड्थ है 30 मीटर्स। फर्स्ट मीटिंग कब होगी? राम की स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड और श्याम की स्पीड इज 1 मीटर पर सेकंड। ठीक है, जब फर्स्ट मीटिंग होगी तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे फर्स्ट मीटिंग में? फर्स्ट मीटिंग में राम और श्याम मिलकर 30 मीटर्स ट्रैवल करेंगे, इजंट इट सो? दोनों मिलकर 30 मीटर्स ट्रैवल करेंगे, इज दैट क्लियर? इसके बाद में फिर क्रॉस करके आगे निकल जाएंगे वो, फिर राम दीवार तक जाएगा यानी एंड तक जाएगा और फिर एंड से लौट के आएगा, रिटर्न करेगा। और सिमिलरली श्याम अपने एंड पे जाएगा और वहां से रिटर्न करेगा।
और फिर इनकी मुलाकात होगी सेकेंड टाइम। फर्स्ट टाइम जब इनकी मीटिंग हुई है तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 30 मीटर्स। जब सेकेंड टाइम मीटिंग होगी तो दोनों ने मिलकर डबल द विड्थ डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, यानी टोटल डिस्टेंस ट्रैवल विल बी 60 मीटर्स। अब इससे मैटर नहीं करता है कि इनकी मीटिंग यहाँ पे हो या श्याम लौट ही नहीं पाए और राम पूरा डिस्टेंस चला जाए, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हमें टोटल डिस्टेंस से मतलब है, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा 60 मीटर्स। अब इसके बाद में फिर क्या होगा, अगेन राम कंटिन्यू करेगा अपनी डिस्टेंस और लौट के आएगा, और श्याम अपनी डिस्टेंस को कंटिन्यू करेगा और लौट के आएगा, और फिर जब ये मिलेंगे तब फिर कहानी क्या बनेगी, फिर ये टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया होगा इन्होंने, अगेन इक्वल टू 60 मीटर्स। तो ड्यूरिंग द थर्ड मीटिंग टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 150 मीटर्स। क्या यहाँ तक बात समझ में आती है? एंड वी नो कि इन्होंने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, राम ने 2 मीटर पर सेकंड स्पीड से कंसिस्टेंटली चला है और श्याम 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चला है, ठीक है। और ये डिस्टेंस इन्होंने साथ में मिलकर ट्रैवल किया है। तो राम और श्याम का डिस्टेंस ट्रैवल का रेशियो क्या होगा, 2:1 स्पीड के अकॉर्डिंग होगा, और टोटल डिस्टेंस विल बी 3 यूनिट्स, और 3 यूनिट्स से हमारा 150 के बराबर। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 50। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई राम, क्योंकि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई राम पूछ रहा है, 2 यूनिट्स विल बी इक्वल टू 2 × 50, दैट इज 100 मीटर्स। 100 meters, option D. Is that clear? ठीक है, so that will be the answer. That is all about the questions, basic questions on time, speed and distance. ठीक है, कुछ क्वेश्चंस बाकी हम बोट एंड स्ट्रीम पे करेंगे, वो सेपरेट टॉपिक रहेगा, और ट्रेन्स पे बेस्ड जो क्वेश्चंस आए हैं उनको भी हम सेपरेटली करेंगे। और फिर एक सेशन रेसेस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते तो नहीं है, ना महाराष्ट्र सीटी में आते हैं, ना सीमेट या सीयूईटी में आते हैं, बट रेसेस पे भी एक सेशन ज़रूर हम करेंगे, सो दैट अगर सर्कुलर ट्रैक्स या लीनियर रेसेस पे कोई क्वेश्चन आता है बेस्ड, तो डेफिनेटली उस क्वेश्चन को हम हैंडल कर सकें एग्जाम में, ठीक है। सो उस पर एक सेपरेट सेशन रहेगा। अगर सेशन पसंद आए तो उसको लाइक जरूर करना है, अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना। यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद ऑन टेलीग्राम एट ADITYAKT, और you can join the Telegram group, that is CATZAT MBA. That's all for this session. Bye bye. Take care.